The true essence of any event lies in the wisdom and inspiration shared by those who have achieved excellence through dedication and service. Ladies and gentlemen, we are immensely privileged to introduce one of our distinguished dignitaries, Sri Shyam Jagannathan, IAS, the Distinguished Director General of Shipping. Sri Shyam Jagannathan, a 1997 batch IAS officer of the Assam Meghalaya cadre, assumed office of the Director General of Shipping under Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India on 3rd July 2023. He has earlier served as Zonal Development Commissioner, Santa Cruz Electronic Export Processing Zone, Special Economic Zone Mumbai under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India at Mumbai. In his earlier assignment with the State Government of Assam, Sri Shyam Jagannathan has served as Commissioner and Secretary, Finance Department and Commissioner, North Assam Division. Sri Shyam Jagannathan has also served as Commissioner, Commercial Taxes, Chairman, Civil Supplies Corporation, Department of Food and Civil Supplies, Department of Finance, Government of Kerala, and separately as District Magistrate of West Garo Hills in Meghalaya, thereby giving him the diverse exposure of the three states of Assam, Kerala, and Meghalaya. He has the domain knowledge in the core areas of public finance, export promotion, prospective planning, public policy analysis, and sectoral exposure to the animal husbandry and veterinary rural development and judicial processes. Presently, in the assignment of the DG Shipping, an attempt has been made to leverage technology-based solution to computerize end-to-end the workflow process of the Directorate General of Shipping and the examination reforms for the compliance to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. It's my honor to invite Sri Shyam Jagannathan, IAS, the Distinguished Director General of Shipping, to address the gathering. Sir, the stage is yours. नमस्कार। मंच पर आसीन माननीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, कैप्टन ब्रजेश चावला जी, माननीय सांसद डॉक्टर भरत शेट्टी जी, माननीय विधायक श्री सुशील खोपड़े जी, अतिरिक्त महानिदेशक नौवहन महानिदेशालय, श्री वेंकटरमना कराजू जी, अध्यक्ष न्यू मैंगलोर पोर्ट प्राधिकरण, कैप्टन MP बसीन, प्रबंधन निदेशक MSC क्रूइंग सर्विसेज लिमिटेड, श्री नाथन, अध्यक्ष और संस्थापक CMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अन्य वरिष्ठ अतिथिगण, सम्मानित उपस्थित मान्यवर, महत्वाकांक्षी कैडेट, नौवहन महानिदेशालय की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाल में ही मुंबई में संपन्न इंडिया मैरीटाइम वीक में पूरे विश्व ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कैबिनेट मंत्री जी के नेतृत्व में भारत की समुद्री आकांक्षाओं के प्रमाण देखे, जहां 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि 90 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय देशों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 12 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के समझौते पर हस्ताक्षर हुए और भारत एक अग्रणी समुद्री राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, इसकी सार्वभौमिक रूप से पुष्टि हुई। हम मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 के उल्लेखनीय लक्ष्यों की ओर अग्रसर हैं। वर्तमान में हमारे पास 3 लाख से अधिक भारतीय नाविक हैं और वैकल्पिक कार्यशैली में 12% से बढ़कर 20% के अधिक हमको करना है। अमृतकाल मैरीटाइम विजन का उद्देश्य भारत को दुनिया में शीर्ष नाविक आपूर्तिकर्ता के रूप में बनाना है। भारत आज अपने
समुद्री विरासत के अनुकूल काम कर रहा है। बंदरगाहों की क्षमता में वृद्धि, भारतीय तटभार और जहाज़ों के पंजीकरण में वृद्धि, जहाज निर्माण में विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर पहुंचना और सातत्यपूर्ण, सुरक्षित, संरक्षित एवं स्मार्ट शिपिंग में पूरी दुनिया में अग्रणी होने का लक्ष्य निर्धारित है। आज मैंगलोर में समुद्री वाणिज्य विभाग के नए कार्यालय भवन का भी उद्घाटन होना है। माननीय मंत्री के कर कमलों द्वारा यह परियोजना तकरीबन 9 करोड़ रुपए की 4050 स्क्वायर मीटर में नाविकों के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है मैंगलोर बंदरगाह प्राधिकरण। क्षेत्रीय व्यापार और रोजगार का ये स्तंभ है। एलएनजी, उर्वरक और कंटेनराइज्ड कार्गो में यह बंदरगाह भारत की अर्थव्यवस्था एवं निर्यात आयात विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वह बधाई के पात्र है। एमएससी नामक विश्वव्यापी कंपनी अपनी साझेदारी से मजबूत करने के लिए 12 जहाज़ों को भारत में पंजीकृत कर रहा है, जिसकी पुष्टि एमएससी के मुख्य कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री के समक्ष इंडिया मैरीटाइम वीक में श्री सोरेन टॉफ जी ने पुष्टि करी। 2 दशक पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री जी के साइप्रस की यात्रा जुलाई माह में इस वर्ष में, और वहाँ साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडालिस और उनके गर्मजोशी से उनका स्वागत दोनों देशों के बीच गहरी और स्थायी मित्रता का प्रमाण देता है। इसके फलस्वरूप आज यहाँ सीएमसी के इंस्टीट्यूशन में भी ये भागीदारी एमएससी के साथ इस समारोह में उद्दीप्तमान है। सीएमसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की आज की इस पहल से नाविकों के प्रशिक्षण में एक नई परिमाण तय करी जा रही है। नाविक महानिदेशालय से भागीदारी के साथ नई तकनीकियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिनके द्वारा प्रयास ये है कि नाविक को सक्षम बनाए और वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च नाविक भारतीय रहने का प्रमाण दे, जिससे भारतीय ध्वज की गरिमा बरकरार रहे। सागर में सम्मान और सागर में योग, इन 2 परियोजनाओं में माननीय मंत्री जी के ही कर कमलों द्वारा जून 21 इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 10 मॉड्यूलों का अनावरण किया गया। आज यहीं पूरे राष्ट्र भर के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नवीनीकरण और आईटी के माध्यम से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सागर में योग विश्व के हर कोने में योग के धरोहर का संदेश देगा और नाविकों को सुदृढ़ करने का मार्ग दिखाएगा। मैं नूसी और ट्रिजोग दोनों के इस पहल और भागीदारी के लिए उन्हें कृतज्ञता जनाता हूँ। मैं अंत में माननीय मंत्री जी का यहाँ पुनः स्वागत करता हूँ और उन्होंने हमें ये अवसर दिया, हमारा प्रोत्साहन किया, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। और आप सबका जो यहाँ इस अवसर पे शामिल हुए उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।